Hello guys, welcome to another episode of the Cinebrew podcast. And आज we are going to discuss something that is almost relevant to all young, experienced, professional filmmakers, and that is about film festivals. So I wanted to start this discussion by telling you कि थोड़े टाइम से जब से at the time of your recording this episode there are two major films जो काफ़ी न्यूज़ में चल रही हैं which have gotten selected to Cannes के लिए। for the Cannes Festival. So one is a film called All We Imagine as Light by Payal Kapadia, and which is in the news because it has gotten into the main competition category, and this has happened after 30 years. So this is one major thing and one major thing for films in India, like the film industry in India. And the second film जो काफ़ी recognition में है, news में है, which is basically in Film Festival there is a category where film schools can submit their own films. मतलब students of film school submit film. तो उसमें there is one film which has gotten selected, and the title of the film is Sunflowers Were the First to Know, and it is a film by FTII के students. So I wanted to ask you कि मतलब first question I have is कि what do you think, मतलब ऐसी films का select होना and उनको ये recognition मिलना कि वो select हुए हैं, what does it mean for the like the upcoming filmmakers उनके लिए what do you think? मतलब फेस्टिवल्स तो डेफिनेटली आर अ वेरी बिग अप Yeah. लाइक फॉर द फिल्म मेकिंग कम्युनिटी इटसेल्फ। Yeah. आई डोंट नो एज एन ऑडियंस उतना फ़र्क पड़ता होगा या नहीं True, नॉर्मली true. लोगों को, बट हाँ. एज अ फिल्म मेकर व्हेन यू सी की स्पेशली ग्लोबल फेस्टिवल्स में यू आर गेटिंग रिकग्निशन, मतलब देयर्स अ लॉट ऑफ डिबेट गोइंग ऑन कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ग्लोबल फेस्टिवल्स हैं हम इधर हाँ. करेंगे, बट स्टिल मतलब व्हेन यू सी द न्यूज़ कि लेट्स से ऑस्कर्स में कोई फिल्म जीती है Yeah. या फिर एटलीस्ट इट गेट्स नॉमिनेटेड इन ऑस्कर्स और कैन्स और कोई भी बड़े Yeah. बिग फेस्टिवल में, सो इट्स अ वेरी मतलब एक अच्छा एक मोटिवेशन का आई गेस पॉइंट मिल जाता है कि इफ़ यू आर मेकिंग फिल्म्स इन अ सर्टन वे यू कैन गेट टू दैट पॉइंट। तो उसके Right. पीछे लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर कि कैसे सेलेक्ट होती है, हमेशा ये नहीं होता कि इफ़ इट्स अ गुड फिल्म ओनली तभी Yeah. सेलेक्ट होगी, Yeah. Yeah. अ लॉट ऑफ थिंग गोज बिहाइंड दैट। बट आई थिंक हाँ मतलब काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है फॉर फिल्म मेकर्स। That's true. मतलब but I want उसका मेरे को kind of a counter argument would be कि because films are making to the festivals, like हाँ you make something like maybe let's say you got into a production and that production ends up in festival, ठीक है? ठीक है। उस production को देख के as a filmmaker now you saw one film, you made a film which made it into a festival. अब तुम ये सोच, do you think that thinking will come in your mind कि ओ अब मैं ऐसी ही films बनाऊंगा which I feel have festival potential? हाँ मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि एक तो फिल्म्स हो गई विच आर जनरली लव्ड बाय ऑडियंस, मतलब तू दोस्तों को दिखाएगा, फ्रेंड्स फैमिली दे लव इट, उनको बहुत अच्छी लगेगी, इट कैन बी ऑफ एनी जॉनरा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक फिल्म्स जो फेस्टिवल्स जीतती हैं, मतलब ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है, मैंने देखा है कि दे आर अ लिटिल बिट डिफरेंट। मतलब वो फिल्म्स मतलब फेस्टिवल्स के लिए जो फिल्म्स बन रही हैं दोज आर मेड फॉर द फेस्टिवल्स ओनली, ऐसा मुझे लगता है। एंड एक जनरल फिल्म्स आर थोड़ा डिफरेंट। सो इफ़ यू आर विनिंग अ फिल्म फॉर अ फेस्टिवल as a filmmaker who has just started out or is making films for quite some time, तो उसमें आई गेस कुछ गलत है नहीं कि इफ़ यू आर मेकिंग अ फिल्म फॉर द फेस्टिवल ओनली, क्योंकि अभी व्हाट्स योर मेन एम टू गेट द रिकग्निशन। ठीक है, एक पॉइंट आता है कि भाई आई एम मेकिंग फिल्म्स फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एज अ डायरेक्टर, दोज पॉइंट्स आर वैलिड, बट अप टू विच पॉइंट? मतलब if you are having this as your main source of income, you want that recognition, you want people to know you, tabhi you can get bigger projects, more budget, and you can eventually have your own vision in a bigger way. So uske liye I guess festivals are one of the best options for, मतलब हम भी अभी अगर कुछ फिल्म बना रहे होते हैं या हम भी कुछ डिस्कस करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में एक ये पॉइंट रहता है कि कौन से रीसेंट फेस्टिवल्स आने वाले हैं 1-2 महीने में, क्योंकि इंडिया में इतने फेस्टिवल्स होते हैं, इवन वी डोंट नो कितने सारे होते हैं। धीरे धीरे हमें खुद ही पता चलता है किसी पोर्टल पे जाके कि अच्छा ये फेस्टिवल भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। सो आई थिंक मेकिंग फिल्म्स फॉर अ फेस्टिवल इज़ नॉट बैड और नॉट इन एनी वे इट मतलब स्टॉप्स यू इन योर क्रिएटिव फ्रीडम। और ये नॉट जस्ट फेस्टिवल्स यार, ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। इवन इफ़ यू सी बॉलीवुड फिल्म्स, कोई भी एक टिपिकल कमर्शियल फिल्म भी अगर बन रही है तो हर बार तो ऐसा होता नहीं कि द डायरेक्टर मेक्स वट एवर द फक ही वांट्स। मतलब थोड़ा तो एक दिमाग में रहता है कि अभी का सिनेरियो क्या है, कि अगर तू लेट्स से एक दबंग बना रहा है, ठीक है,
तो उस फिल्म में भी इट्स नॉट जस्ट योर एंटायर क्रिएटिव फ्रीडम, कहीं ना कहीं रहता है ये फिल्म किसको टारगेट कर रही है, राइट अभी इंडिया में क्या चीज़ चल रहा है, उस टाइम पे लोगों को वो चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं। तो वो आई गेस हर क्रिएटिव उसमें रहता ही है। तो मतलब मैंने बहुत एग्जैजरेट कर दिया एक छोटे से पॉइंट को, बट हाँ आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे मेरे माइंड में वही आता है कि आई काइंड ऑफ मतलब यू कैन कॉल इट अ फियर, यू कैन से कि आई डोंट वांट टू चूज प्रोजेक्ट्स विद दैट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि ये फेस्टिवल में जाएं। मतलब इवन दो इट माइट बी गुड फॉर मी, या फिर मतलब मेरे लिए तो बेटर ही है, व्हाई नॉट वगैरह वगैरह, बट आई फील कि या मतलब सिर्फ उस वजह से भी नहीं करना, विच आई फील अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ टेंडेंसी टू डू। मतलब आई फील दिस इज माई अजम्पशन कि मे बी देर आर पीपल आउट देयर जो ये देख के ये भी सोच रहे हो कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट तो आई डू ओनली फेस्टिवल काइंड, एंड उसके बाद वाला भी ओनली फेस्टिवल। हाँ मतलब ये काफ़ी वैलिड पॉइंट है कि अगर तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग फिल्म में ही सबसे पहली चीज़ें आ रही है कि ये फेस्टिवल में चलेगा नहीं तभी करूँगा, तो शायद फिर थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन टूवर्ड्स फेस्टिवल जीतने पे हो रहा है। बट हाँ आई थिंक ये काफ़ी थिन लाइन भी है इसके बीच में, इफ़ यू कैन मैनेज बोथ द साइड्स कि तुम अपना भी कर रहे हो प्लस वो फेस्टिवल्स के लिए भी अच्छी है। बट पता है इधर एक थर्ड चीज़ और आ जाती है, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेस्टिवल्स ना, मेरे को लगता है 3 डिफरेंट कैटेगरीज हो जाती है ऑफ द फिल्म्स, क्योंकि टिपिकली इफ़ यू रिमूव फेस्टिवल्स एज अ फिल्म मेकर, मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि एक फिल्म है जो मुझे बनानी है और एक फिल्म है जो ऑडियंस को देखनी है। अब एक तीसरी कैटेगरी आ रही है, एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स जीतती है, वो फिल्म ना ऑडियंस को शायद उतनी अच्छी लगती है ना मुझे बनानी है, बट वो फेस्टिवल्स में वो फिल्म जीतती है पॉसिबल। तो अब मैं उसमें देख एट द एंड तुम एज अ फिल्म मेकर तुम्हारा ही माइंड उसमें वो होते रहेगा इधर से उधर। तो हाँ एक क्लैरिटी तो रहना आई गेस वही बेस्ट ऑप्शन रहेगा अपने माइंड में कि नहीं मुझे अगर इस टाइप से बनानी है मैं ऐसे ही बनाऊंगा, एंड देन हाउ कैन आई मोल्ड इट और लाइक एड अ हिंट ऑफ समथिंग विच मे हेल्प मी इन गेटिंग इनटू फेस्टिवल्स आई गेस। वो पॉइंट, और मतलब मैं ऐसा तो है नहीं किसी पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ फेस्टिवल जीतने के, मतलब मैं बस एक आई थिंक कि ये एक ऑप्शन रह सकता है, अब क्या पता और भी कुछ अच्छे ऑप्शंस हो। नहीं एब्सोल्युटली, मतलब इट्स नॉट लाइक आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल कैन ऑल्सो टेक फेस्टिवल्स एज अ बेंचमार्क और एज अ पेडेस्टल की मतलब अगर ये फिल्म जीती है सम फेस्टिवल, so it you have that tendency to keep that film and filmmaker on a pedestal, you know, like oh ये तो कुछ तोड़ ही है, and then maybe their other work because of that expectation that you had कि ओ भाई इसने तो ये फिल्म फेस्टिवल जीता है या फिर सेलेक्ट हुआ था, उनका फ्यूचर वर्क माइट नॉट सीम दैट इम्प्रेसिव बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन कि पहले तो जो किया था दैट वाज अमेजिंग, अब जो किया है वो इतना अंडरवेलमिंग है। मेरे को तो मतलब मुझे एक चीज़ और लगता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली डायरेक्टर्स जो अवार्ड्स जीत रहे हैं, अगर उनके काम को देखें बहुत रेयर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी डायरेक्टर का फेस्टिवल्स को हटा दे सिनेरियो से, लाइक आई एम अ फैन ऑफ लेट्स से नोलन की मैं बहुत अच्छी लग रही है, बट उसी डायरेक्टर की सेम टाइप ऑफ मूवी कभी ऑस्कर भी जीत जाए। मतलब मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जो फिल्म्स टिपिकली फेस्टिवल्स में जीत रही हैं बहुत रेयर होता है विद मी कि मुझे वो फिल्म भी एज अ कमर्शियल सिनेमा भी या फिर एज एन पीस ऑफ एंटरटेनमेंट एज अ पीस ऑफ आर्ट भी अच्छी लगे फॉर मी। मतलब हमेशा मेरे को फेस्टिवल वाली फिल्म्स में एक अलग जोन दिखता है जो आई गेस मास ऑडियंस को बहुत कम पसंद आता है फॉर श्योर, अनलेस तुम बैठ प्रॉब्ली वो फिल्म फेस्टिवल के जजेस ही जज कर सकते हैं हाँ अच्छे से। वही है वो पॉइंट है। मतलब और स्पेशली ऐसे तूने अभी जो हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि ऑफ मेकिंग फिल्म्स किसी एक फिल्म को कोई जीती है टू लाइक हैव दैट फिल्म ऑन अ पेडेस्टल एंड देन टेक दैट एज एन इंस्पिरेशन फॉर यू एज अ फिल्म मेकर कि अगर इस टाइप की फिल्म्स जीत रही हैं इन मैं भी बनाता हूँ उस टाइप, अगर मैं इसे की बना रहा हूँ उसमें कुछ गलत भी नहीं है मेरे हिसाब से नहीं है kind of. और मतलब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी है कि जैसे लास्ट ईयर ऑस्कर्स में वो जीती ये एलिफेंट विस्परर्स जीती फॉर द बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एंड उसके बाद मैंने पर्सनली देखा है कि डॉक्यूमेंट्रीज इतनी ज़्यादा बन रही हैं एंड इंडिया में मुझे जहाँ तक पता है कोई ज़्यादा ऑडियंस है नहीं टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज। मतलब फिल्म स्कूल्स के बच्चे ही होंगे या फिर सम फिल्म क्रिटिक्स या उस टाइप के लोग होंगे जिनको नीश इंटरेस्ट होगा इन वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज। मतलब डॉक्यूमेंट्रीज बहुत टाइम से न्यूज़ चैनल्स और इन पे चल रही है बट दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री। हाँ बट नहीं व्हाट यू सेइंग इज कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत टाइम से बन रही हैं। हाँ बट ऑडियंस नहीं है वही हाँ अब जैसे मास ऑडियंस के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और जैसे न्यूज़ चैनल्स पे हैं या कहीं और प्लेटफॉर्म पे वो एक काफ़ी ऐसा मसालेदार टेक होता है ना डॉक्यूमेंट्री। मतलब दैट आई डोंट थिंक कि कभी किसी फेस्टिवल में अप्रिशिएट उस टाइप का फिल्म मेकिंग या उस टाइप की चीज़ की जाती है क्योंकि वो बनी नहीं रही है कभी उसको दिमाग में लेके।
सो व्हेन अ फिल्म लाइक एलिफेंट विस्परर्स इज विनिंग या फिर गेटिंग रिकग्निशन, फिल्म मेकर्स उसके वापस इंडिया आ रहे हैं, तो पीपल आर एक्चुअली Yeah. कॉन्ग्रेचुलेटिंग देम और लोग अब Yeah. जानते हैं नाम से. Mm-hmm. सो उसके बाद एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि मैं भी सोच सकता हूँ कल को कि भाई नहीं, एक मेरे को डॉक्यूमेंट्री बनानी है या फिर कुछ ऐसा करते हैं. सो आई थिंक वो एक For काफ़ी sure. अच्छा पॉइंट है, एंड फिल्म फेस्टिवल्स आर डूइंग गुड इन दैट पर्सपेक्टिव. Yeah. मतलब obviously I feel such wins, I feel कि rather than ठीक है पेडेस्टल वाली चीज़ पॉसिबल है, बट वो पेडेस्टल वाली चीज़ उन वही लोग करेंगे जो उस फिल्म के लेवल या उसके आसपास होंगे. मतलब लेट्स से एलिफेंट विस्परर्स 1, ठीक है, तो उनके उस लेवल पे जो लोग या प्रोडक्शन हाउसेज होंगे या फिर मे बी दैट लेवल ऑफ फिल्म मेकर्स विल ओनली पॉसिबली कीप दैट फिल्म एट अ पेडेस्टल. नीचे वाले तो प्रमोट ही होंगे ज़्यादातर, मतलब जो अभी शुरू कर रहे हैं. बाकी सब हो सकता है जो इसको डिस्कशन में ले एंड दे आर लाइक ओ यू नो एलिफेंट विस्परर्स, यू नो इट्स मेड बाय दिस पर्सन और दिस डीओपी एंड देन दिस डायरेक्टर, तो वहाँ पे वो एक पेडेस्टल हो सकता है. बट आई गेस हम जो स्टार्ट आउट कर रहा है वो तो प्रमोट ही होगा. और मतलब ये भी जैसे लास्ट ईयर स्पेशली ऑस्कर्स में इंडिया की 2 फिल्म्स थी. हाँ. तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि मेन नॉमिनेशंस में ही 2 फिल्म्स हैं. एक तो ये है ही एलिफेंट विस्परर्स, एक ऑल दैट ब्रीथ्स थी. अब जैसे मुझे पर्सनली, मैंने दोनों देखी, मुझे ऑल दैट ब्रीथ ज़्यादा अच्छी लगी. राइट. सो मेरे को एक चीज़ और ये भी ऑप्शन मिल गया कि स्पेशली इंडियन फिल्म है. सो मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ, इंडियन फिल्म्स आर गेटिंग रिकग्निशन इस सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री वाले स्पेस में. एंड ऑन दैट टू आई हैव ऑप्शन 2 कैटेगरीज में कि नहीं, मुझे इस टाइप की फिल्म मेकिंग. तो एक तरह से मुझे और थोड़ा एक लेवरेज मिल रहा है कि ऐसा नहीं है कि एलिफेंट विस्परर्स बस जीती पिछले 50 साल में, तो अब मेरे दिमाग में वही है कि ऐसी बनाओ और यही जीतेगी. ट्रू. सो वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज कि ये मेरा काफ़ी पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन रहता है एज अ व्यूअर कि फिल्म फेस्टिवल जाती है, हाँ, यू नो यू इट मेक्स अप टू द न्यूज़ एंड यू गेट टू नो कि ये सेलेक्ट हुई है, यहाँ हुई है, यू लुक इट अप ऑन इंटरनेट और वो कहीं अवेलेबल नहीं होती. ये एज अ व्यूअर मुझे लगता है कि भाई इजंट इट लाइक काइंड ऑफ नॉट, आई वुडंट से अनफेयर, मतलब अनफेयर टू द ऑडियंस कि इतना अच्छा कोई आर्ट वर्क बना होगा विच इज़ मेड अप टू दैट लेवल जहाँ पे एक हाईली अकम्पलिश्ड पीपल जो जूरी होंगे, जो बहुत एक्सपीरियंस फिल्म मेकर्स होंगे, दे मेड दैट फिल्म यू नो गेट दैट एक्कोलेड. बट अब जो नॉर्मल व्यूअर्स है वो देख नहीं सकते. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब तेरा क्या ओपिनियन है इस चीज़ को? मतलब देख, एज अ व्यूअर तो ऑब्वियसली ये चीज़ तुम चाहोगे कि इफ़ लेट्स से लास्ट ईयर ऑस्कर्स में कोई फिल्म गई थी, सो हर कोई चाहता था कि मैं एलिफेंट विस्परर्स देखूं, पहले देखूं बिफोर. आई गेस एलिफेंट विस्परर्स नेटफ्लिक्स से पहले आ गई थी शायद. नहीं, प्राइम वीडियो पे है शायद. नहीं, जियो सिनेमा पे है. नहीं, आई तो वो नेटफ्लिक्स पे ही है. अच्छा, जो भी प्लेटफॉर्म, बट हाँ, OTT मतलब मेरा ये था कि जब भी कोई स्पेशली इंडियन फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में हम ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि कोई फिल्म जाती है तो बहुत मन करता है यार मैं भी देखूँ उसको, पहले देखूँ कि क्या है जो सेलेक्ट हो गई ऑस्कर्स में. इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो हाँ, एज एन ऑडियंस आई नो कि काफ़ी ज़्यादा मन में वो पॉइंट आता है कि मतलब यार ये तो गलत बात है, मेरे को भी देखना है, इट्स नॉट अवेलेबल. बट आई गेस इसमें फिल्म मेकर की भी गलती नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल्स का अपना होता है एक एक्सक्लूसिविटी वाली चीज़ की यू कांट डिस्ट्रीब्यूट इट एनीवेयर, ये डायरेक्टली फेस्टिवल में आनी चाहिए. तो फिल्म्स का जनरली यही रहता है कि वो 2-3 साल तो अपने फेस्टिवल्स के सर्किट में ही घूमते रहती हैं. एंड देन मुझे लॉजिक समझ नहीं आता. इवन आई डोंट नो, कुछ होता होगा रीजन. व्हाई वुड यू वांट अ फिल्म टू ओनली बी सीन बाय अ बंच ऑफ पीपल जो उस फेस्टिवल में जज कर रहे हैं या तो देखने आए हैं? व्हाई? पर पता है क्या है, एक तो हमने फेस्टिवल्स का पॉइंट देखा कि एज अ जो भी फेस्टिवल होस्ट कर रहा है वो क्या चाहता है. बट एज अ फिल्म मेकर भी आई थिंक एक चीज़ और आती है कि अगर तू पहले ही उसको, मतलब तुम पहले कहाँ डालोगे. लेट्स से तूने एक फिल्म बनाई, वो बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब तुझे पता है ये तो ऑस्कर्स जीतने वाली है, तेरे पास इतने मीम्स भी हैं, तू इतने लोगों को जानता भी है, तेरे पास इतना पैसा भी है, आई डोंट नो पैसा जो भी, बट तू मतलब उस फिल्म को ले जा सकता है ऑस्कर्स में, तेरे को पता है ये चीज़, और तेरे को आसपास के लोगों ने भी बोला है. स्टिल यू डोंट नो कि मतलब वो फिल्म तू कहाँ डालेगा. तू अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देगा नॉर्मल सोमेश श्रीवास्तव ना, क्या तू चाहेगा वो इतनी अच्छी फिल्म है कि वो नेटफ्लिक्स पे जाए. आई विल फाइंड अ डिस्ट्रीब्यूटर. नहीं, बट नेटफ्लिक्स वोंट टेक दैट फिल्म. व्हाई वुड दे टेक? वो ते को नहीं जानते, वो तेरे डीओपी को नहीं जानते, वो ना उन एक्टर्स को जानते हैं. इतना पहुंचा हुआ तो नहीं है अभी. ओके. अच्छा, सो आई गेस तो मतलब इन दैट सेंस वो जब तक वो ऑस्कर्स में नहीं जीतेगी तभी तो अगले दिन तुझे नेटफ्लिक्स का शायद मेल आएगा कि वी वांट योर फिल्म ऑन आवर प्लेटफॉर्म. मतलब आई थिंक एक ये पॉइंट भी है फॉर श्योर. मतलब रिकग्निशन जब तक फिल्म से अटैच नहीं होगा, मे बी इट डजंट गेट दैट मच लेवरेज अक्रॉस व्हेन इट कम्स टू लाइक अर्निंग फ्रॉम इट. आई गेस अर्निंग के लिए तो तुम्हें एक अपना एक मे बी लाइक यू नो हैविंग सम एक्कोलेट्स टू योर फिल्म हेल्प्स इन लेट्स से इन अर्निंग फ्रॉम इट. तो जब कोई प्लेटफॉर्म देखेगा उस फिल्म को लेगा,
So maybe that accolade of yours will, you know, cause your earning to like double or maybe like increase by 1x or 2x. ठीक है? So accolade will help that in that sense. But isn't sending a film to a film festival like, you know, closing it in a box हाँ and just, you know, definitely. locking it only for that those jury and those people जो देखने गए to unlock? मतलब हाँ, फॉर द ऑडियंस इट इज़ दैट वे. बट फिर जो हमने स्टार्टिंग में जो पॉइंट डिस्कस किया कि शायद फिल्म मेकर हिमसेल्फ और सेल्फ दे नो कि ये फिल्म शायद मास ऑडियंस के लिए उतनी डायरेक्टली है भी नहीं, लाइक फॉर अ कमर्शियल सिनेमा. ये भी सो possible है, हाँ. दे नो कि इसको रिलीज़ करके एनीवे ऐसा होना नहीं है कि ये बिल्कुल हाइप अप हो जाए. मतलब हाँ. बहुत रेयर ऐसी फिल्म्स हैं हाँ. लाइक ओपनहाइमर की जो फर्स्ट डे पे भी अगले 1 महीने तक थिएटर्स वर हाउसफुल एंड स्टिल इट वॉन इन ऑस्कर्स ऑल्सो. अच्छा. ऐसे बहुत कम ही रहेंगे. Okay. मतलब वी टॉक अबाउट एलिफेंट विस्परर्स या मतलब इंडियन फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हाँ, हूँ. हाँ, हाँ. तो मतलब आई थिंक ये मेरे को ऐसे ही लगता है कि एज अ फिल्म मेकर यू नो कि इस फिल्म का एक उतना ही है कि दिस इज़ स्पेशली मेड फॉर फेस्टिवल्स एंड उधर ये बहुत ज़्यादा जाएगी. सो यू वांट कि पहले मैं वो 5 फेस्टिवल्स जीत जाऊं कि जब मेरी फिल्म अगर नेटफ्लिक्स खरीदे तो फिल्म स्टार्ट होते ही जो पहले 4 क्रेडिट्स हैं उसमें ऑलरेडी आए कि बेस्ट फिल्म Official एट selection, ऑस्कर्स, हाँ. बेस्ट फिल्म, ये ऑफिशियल सिलेक्शन, ये Yeah, वो yeah. जो 15-20 अलग अलग Yeah, वो आते हैं. देन यू स्टार्ट द फिल्म. सो ऑलरेडी द ऑडियंस वुड बी कि ठीक है कुछ अच्छा आ रहा है हमारे वे. Right, right. सो आई थिंक एक I वो mean, भी पॉइंट obviously, है. I feel कि people who have just entered, you know, like maybe that stage जहाँ पे वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म को अप्रोच करने, जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड टेक लाइक वरुण ग्रोवर्स फिल्म ऑल इंडिया रैंक. ठीक है? ठीक है. दैट आई गेस वाज एन ऑफिशियल सिलेक्शन इन वन ऑफ वेरी मेजर फिल्म फेस्टिवल. मुझे नाम नहीं याद उसका, बट इट गॉट इनटू दैट सिलेक्शन एंड आई फील मे बी दैट सिलेक्शन वाज अ पॉइंट वेयर, यू नो, लाइक उस सिलेक्शन तक तो रिलीज़ नहीं हुआ था, उस सिलेक्शन के बाद ही रिलीज़, थिएट्रिकल रिलीज़ वाली चीज़ हुई थी. हाँ. तो बट वो जब सिलेक्शन वाला एक क्रेडिट आया था, जैसे तूने बोला, जब वो स्टार्टिंग में आया था और ट्रेलर के स्टार्टिंग में भी आया था, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन अलग लेवल पे चली जाती है. एंड वही शायद एक हाइप हाँ. क्रिएट करता है. मतलब ये बोलना गलत होगा कि उसी चीज़ से फिल्म का हाइप क्रिएट हो रहा है, बट वो एक बहुत अच्छा वो रहता है अ कैटलिस्ट सॉर्ट ऑफ कि जिससे तू देखते ही बोलेगा ठीक है कुछ तो है फिल्म में कि ये कहीं जीती है, ये सेलेक्ट हुई है. सो हाँ, मतलब इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं. एंड वन मोर थिंग जो तू स्टार्टिंग से जैसे तूने बोला कि एज एन ऑडियंस हमारे लिए थोड़ा ये गलत है कि हम नहीं देख पाते हैं, बट मुझे लगता है बहुत नीश ऑडियंस है. मतलब अगर तू है तो 5 और होंगे उन 1000 लोगों में कि जिनको होगा कि हाँ ये हो जाती. बाकी जो 900 लोग हैं उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई. उनको है कि हमारे सामने आप रिलीज़ करो तो हम देखेंगे, नहीं करनी मत करो, हम कोई और देख लेंगे. हाँ, मतलब मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बिकॉज let's take example of this film, right? पायल कपाडिया's All We Imagine Is Light. ठीक है? अब अभी आया है कि it's gotten into the main competition. अभी लोगों की क्यूरियोसिटी पीक पे है कि भाई oh what is this film about? But it's not available anywhere to view. Or maybe even after it wins or doesn't win, it might not be available as immediately after. You know, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बाहर आने में. But यही तो टाइम है ना when I as a filmmaker want to know कि भाई आज ये जीता है, इस टाइप का मटेरियल is getting attention. Take inspiration from it. अभी as in let's say at this point of time, कभी भी मुझे अगर let's say you know I want to know more about the films which have won या which have gotten recognition, मुझे 2-3 साल पीछे जाना पड़ता है. या फिर इवन फॉर दिस एपिसोड, जैसे इफ यू वांटेड टू टॉक अबाउट दिस फिल्म, हमारे पास कुछ मटेरियल नहीं है, ट्रेलर भी नहीं है, बट फिर वही विकी भी नहीं है, कुछ बायो भी नहीं है. बट फिर वही है ना, फेस्टिवल वोंट अलाउ एंड इवन दे वांट कि लेट्स से यहाँ भी वो जीत जाती है एंड दे डोंट गेट एनी ऑफर फ्रॉम किसी बड़े लाइक प्लेटफॉर्म से. सो मे बी दे आर लुकिंग फॉर सम अदर फेस्टिवल्स आल्सो. नेक्स्ट ईयर तुझे यही फिल्म ऑस्कर्स में दिखे अप्लाई तो करेंगे. हाँ, सो एज अ फिल्म मेकर तो दे हैव अ बिगर लाइक गेन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ बेटर रिकग्निशन कि ऑस्कर्स भी जीत जाए उसके बाद नेटफ्लिक्स पे फिल्म आ रही हो. सो ज़्यादा अगर अभी मेजॉरिटी ऑडियंस को शायद नहीं फ़र्क पड़ रहा कि अगर नहीं भी है. हाँ, तो मतलब आई फील आई एम इन माई बबल व्हेन आई से दिस कि फ़र्क पड़ता है. हाँ, बट हाँ मे बी जनरल ऑडियंस को इतना नहीं पड़ता. बट आई थिंक पीपल हु आर लर्निंग फिल्म मेकिंग या फिर गेटिंग इनटू फिल्म मेकिंग, उन्हें तो आई गेस थोड़ा फ़र्क पड़ता ही होगा बिकॉज वी कांट हैव एक्सेस टू द मटेरियल दैट इज़ बीइंग रिकग्नाइज्ड टुडे. वी हैव टू रिवाइंड 2-3 years back and maybe find something, और वो भी immediately नहीं मिलेगा. Maybe we have to use some other third party ways like you know like piracy, वो avoid मतलब बहुत हद तक एक उस लेवल पे भी पायरेसी उसमें भी होती है कि लाइक इन फिल्म स्कूल से बहुत होता है कि ऐसे हमारे भी टीचर्स थे तो उनको होता था कि तुम्हें ये फिल्म दिखानी है, कहाँ अवेलेबल है. फिर पहले तो वो फिल्म कहीं मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स पे तो सर्च भी मत करो, सीधा मूवी पे सर्च करो, वहाँ नहीं है फिल्म
तो फिर अब तुम ढूंढो गूगल पे, फिर यही रहता था सर का, कोई कल डाउनलोड करके लाना कहीं से और फिर देखेंगे। राइट। मतलब बहुत चीज़ें इसमें हम तो एज अ व्यूअर बस मांग रहे हैं हमें दो, बट आई नो इसके पीछे और अलग बहुत सारे रीजंस है। कोई फिल्म मेकर क्यों हाँ चाहेगा उसकी फिल्म अवेलेबल ना हो, वो तो हाँ चाहेगा ही कि हर हाँ। कोई जो देखना चाहता है उसको मिले। सो आई नो अ लॉट ऑफ रीजंस, बट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑडियंस, हाँ हाँ यू वांट की आई फिल्म मीन रहे। मैंने आई हैव अ वेरी रिसेंट एग्जांपल ऑफ एक फिल्म थी, बेसिकली इट्स गॉटन रिलीज्ड आई गेस लास्ट ईयर, while we watched, it's a documentary film about रवीश कुमार, ठीक है। हम्म सो इसके डायरेक्टर जो हैं, his name is विनय शुक्ला, ठीक है, एंड ही आई थिंक ही इज़ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ओनली, ठीक है। सो आई थिंक what happened कि फिल्म आई एंड it had gotten selected in I think couple of festivals and recognition मिला इस फिल्म को, बिकॉज ऑब्वियसली रवीश कुमार, राइट। तो उसके बाद ना क्या हुआ, दिस फिल्म गॉट लीक्ड ऑन यूट्यूब, अच्छा। ठीक है। एंड आई हैड हर्ड विनय शुक्ला saying in I think one of those interviews where he said कि I'm looking for distributors, I'm looking for where can I pitch this film and कहाँ पे ये recognition मिल सकता है इसको, एंड इट वाज अराउंड दैट टाइम ही जब लीक हो गई थी फिल्म, ठीक है। एंड लीक भी ऐसा वाला लीक नहीं था, मतलब एवरी थर्ड फोर्थ सबके चैनल पास वाज हाँ पहुंची अपलोडिंग गई इट, ठीक फिल्म। है। पायरेसी कम्प्लीटली हो गई इस फिल्म की, ठीक है। एट वन पॉइंट आई वुड सेंड लिंक्स फ्रॉम माई अकाउंट कि भाई ये वीडियो इसको ब्लॉक करा दो बिकॉज इट्स वायलेटिंग दैट, बट वो फिल्म लाइक he has done such an amazing work on that film, but again जब तक वो recognition नहीं गेन करेगी तब तक कोई देख नहीं सकता। और जब तक कोई देखेगा नहीं तब तक रिकग्निशन गेन नहीं कर सकती। भाई this is सो इसलिए मतलब आई गेस this is फेस्टिवल्स yeah बिकम द ओनली वे, yeah अपार्ट फ्रॉम कि तुमने फिल्म बनाई यूट्यूब पे डाली एंड mm, कश्यप का नेक्स्ट डे तुझे कॉल आ गया कि यार मैंने देखी, मज़ा आ गया, कल आओ मेरे ऑफिस। तो मतलब दैट इज़ अ वेरी रेयर चांस। तो yeah हाँ मतलब बैक टू आर इनिशियल पॉइंट कि हाँ फेस्टिवल्स आर अ वेरी गुड पॉइंट yeah टू गो इन टू लाइक दैट डायरेक्शन। मतलब लेट्स से अगर अभी हम एक पॉइंट पे हैं और यहाँ हाँ से अब नेक्स्ट स्टेप लेना इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फिल्म्स yeah एंड मेकिंग योर ओन फिल्म्स, मतलब हाँ आई थिंक फेस्टिवल्स ही एक ऐसा ओपन सोर्स बोलो कैटेगरी है जिधर यू कैन डायरेक्टली गो। तो जहाँ पे there is a level playing field हाँ जहाँ yeah मतलब नॉट श्योर अबाउट दैट टू, हाँ बट स्टिल कि एटलीस्ट कुछ तो है जहाँ तुम्हारी फिल्म जा सकती है। हाँ एंड लाइक स्पेशली मतलब नाउ इंडियन फिल्म्स आर गेटिंग रिकग्नाइज्ड इनटू दिस एंटायर कैटेगरी। yeah तो एक बहुत अच्छा जो हमने इनिशियली जिससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया था कि नाउ यू नो कि इफ़ यू मेक फिल्म्स देयर इज़ दैट चांस कि यू कैन गो right टू दैट स्टेप। सो right मतलब दैट मेक्स यू वेरी हैप्पी अबाउट इट कि हाँ मतलब mm, मैं चाहता हूँ। और स्टार्टिंग में तूने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि एज अ फिल्म मेकर तुम मतलब तुम फिल्म्स किस उसमें बनाना चाहते हो, कि फॉर द फेस्टिवल, फॉर योर सेल्फ, या फॉर द ऑडियंस वाली जो right चीज़ right हम बात कर रहे थे। हाँ सो आई थिंक इफ़ यू वांट टू विन फेस्टिवल्स एट दिस पॉइंट कि तुम yeah चाहते हो तुम्हारी फिल्म गेट रिकग्नाइज इन द फेस्टिवल्स, व्हाई नॉट मेक इट फॉर द फेस्टिवल्स। मतलब भाई बाद में बना लेना अपना, मतलब ये मेरा टेक है पर्सनली कि अगर मेरे को है कि मुझे ये फेस्टिवल जीतना है, कोई स्पेसिफिक कोई इंडियन फेस्टिवल हो रहा है, लेट्स से पिफ हो रहा है, इफ़ी हो रहा है, कोई भी इंडियन फेस्टिवल हो रहा है, मेरे को पता है वहाँ की जूरी इस टाइप की है, वहाँ पे रिसेंट ईयर्स में इस टाइप की फिल्म जीती हैं, तो एज अ फिल्म मेकर मैं इस बात पे नहीं अटका रहूँगा कि नहीं मैं यही बनाऊँगा, ये मेरा आर्ट है। मैं मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं, मैं थोड़ा वो ज़्यादा एनालाइज करूँगा और शायद एक बार उसको थोड़ा एक अपर हैंड दूंगा, अपना क्रिएटिव फ्रीडम शायद थोड़ा काटना भी पड़े तो मेरे को कोई इशू नहीं है इफ़ आई एम विनिंग फेस्टिवल्स। I mean I'm on the opposite end हाँ मतलब हाँ वही in that मतलब case इसमें बहुत सारे हैं, हाँ नथिंग इज़ करेक्ट, नथिंग nothing इज़ is wrong I इसमें agree। रॉन्ग, बट हाँ। एक मेरे को लास्ट पॉइंट जो एड्रेस करना था, जो चीज़ मुझे काफ़ी आजकल लगने लगी है कि इवन दो लास्ट डेकेड में एक्सेसिबिलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग हैज़ इंक्रीज्ड, लाइक पिछले 10 साल पहले जो फिल्म जितनी बनती थी अब उससे क्वाड्रिपल टाइम्स फिल्म्स बन रही हैं, ठीक है। एवरी सेकंड पर्सन इज़ अ फिल्म मेकर एंड द पूल ऑफ रिसोर्सेज इज इमेंस, क्योंकि यूट्यूब है, बहुत सारे ओपन सोर्सेज हैं वे यू कैन लर्न, तो लर्निंग भी बहुत बढ़ गई है, हाँ बनाने वाले भी बहुत बढ़ गए हैं, बट द अमाउंट ऑफ पीपल हु वुड end up in winning such competitions internationally is not that much. हाँ मतलब इट्स It's स्टिल द more or less सेम the ना same शायद। हाँ हाँ जितना लास्ट डेकेड में था। Does that surprise you or does that make you feel कि यार मतलब और भी win, because I personally felt कि यार और क्यों नहीं लोग जीत रहे हैं। मतलब वो तो है ही, वो तो आई गेस हर फील्ड में है, एंड हाँ स्पेशली जैसे लेट्स से यू आर ऑलरेडी मेकिंग फिल्म्स, हाँ तो ये बात कहने में बहुत आसान होती है कि आई वांट मोर पीपल टू कम एंड मेक फिल्म्स, yeah फिल्म्स विल ग्रो,
बट डीप डाउन यू नो कि जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं उतना ज़्यादा कंपटीशन तेरे लिए बढ़ रहा है, एंड उतना शायद तेरे लिए मुश्किल है टू विन अ फेस्टिवल. सो आई नो एक इंडिविजुअल और एक 5-7 साल के उसमें देखना उसको थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव रहती है. बट ओवरऑल व्हाट आई थिंक ये फिल्म्स लाइक दीज आर गेटिंग रिकग्निशन. जैसे एक बार स्लम डॉग जीती थी, इवन इफ इट्स नॉट इंडियन फिल्म, इवन थिंग्स आर पोर्ट्रेड रॉन्ग इन इट, या कुछ भी एक गलत वे से इंडिया को देखा गया, जैसे भी रहे, बट वो जीती थी. तो अगले 5-6 साल तक, जैसे मुझे इससे पहले कुछ जब जीती थी मुझे कुछ आइडिया नहीं था ऑस्कर क्या होता है. ठीक है, बट जीती तो मुझे एटलीस्ट ये तो पता चला कि एक चीज़ होती है ऑस्कर जहाँ पे फिल्म्स जीतती हैं और कुछ होता है, क्रेजी सीन होता है कुछ. तो हाँ, मतलब अवार्ड शो होता है, बट बहुत बड़े लेवल का अवार्ड शो होता है. तो ये लगता था. सो मतलब उसमें क्या गलत है, जो मेरे को ये ओवरऑल फिल्म्स की तो ग्रोथ हो ही रही है ना, इफ़ यू जस्ट टेक फिल्म्स एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अ सोर्स ऑफ मीडियम. सो हाँ, दैट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. बट फॉर एन इंडिविजुअल थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ने से थिंग्स माइट गेट डिफिकल्ट टू. मतलब आई पर्सनली फील कि इंडिया एज अ प्लेस हैज़ मैनी स्टोरीज, ठीक है, मतलब मोर देन आई हैव सीन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. आई मीन आई फील जनरली एशिया में ज़्यादा ही रूडिमेंट्री लेवल पे तो मतलब एक डीप कल्चर, एक पुराना कल्चर है, सो अ लॉट ऑफ स्टोरीज है. हाँ, बट आई हैव मे बी, शायद मुझे बिकॉज पता नहीं, अगेन आई मीन नहीं, बट कहाँ है, मतलब अगर तू यूएस की बात करे तो 400 साल पहले कुछ यूएस नहीं था. हाँ, नहीं सब मतलब नेटिव रेड इंडियंस ही थे. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वहाँ पे भी कहानियाँ हैं, बट जो यहाँ मे बी इट्स माई ओन बायस कि आई फील कि यहाँ की कहानियाँ आर मोर इंटरेस्टिंग एशिया में या इंडिया में. नहीं, और पता है इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट मेरे को लगता है इसलिए भी आता है क्योंकि यहाँ पे यू कैन कनेक्ट ऑल दो स्टोरीज टू योर डीप रूट्स कल्चर. मतलब कहीं ना कहीं वो एक मिथ से भी कनेक्ट हो जाती हैं, वो एक रिलीजन एस्पेक्ट भी आ जाता है. सो ओवरऑल एक वो काफ़ी अच्छी स्टोरी और रिलेटेबल स्टोरी लगती है. आई फील जितना अमाउंट ऑफ स्टोरीज हैं, जितने अमाउंट ऑफ फिल्म मेकर्स हैं, उसी के प्रपोर्शन में अवार्ड्स शुड रिफ्लेक्ट दैट. बट फिर पर्सनली फेल्ट नहीं, बट फिर वो अवार्ड जीतने की फिर वो जो अभी रहता है कि इतनों में से वो एक मिलता है, फिर वो कम हो जाएगा ना. नहीं, बट आई फील बहुत सारे फिल्म यार ऐसी होंगी विच आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ से निकलती होंगी एज प्रोडक्शन, बट नेवर कुड मे बी एंड अप इन द टॉप 3 या टॉप 1. नहीं, वो तो हो सकता है. हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा इवेंचुअली, एंड देन इवेंचुअली यू वुड नेवर सी देम अगेन, क्योंकि इतनी लाइक वही मैं, दिस इज माई डिलेमा विच कम्स इन द एंड. देखने वाली फिल्म्स भी बहुत है, पर जो नहीं देख सकते वो लगता है डबल है. मतलब जो फिल्म आप नहीं देख सकते. वही ना, अब तो जैसे देखने को भी इतना मटेरियल है. कोई ये भी बोल सकते हैं भाई वो सब देख लो ना, वो क्यों नहीं देख रहे, वो भी तो जीती है, वो भी इतनी अच्छी है. बट हाँ, आई गेस मतलब इस टाइप के कॉन्वर्सेशन का वही काफ़ी ओपन एंडेड ही इसकी एंडिंग रह सकती है, क्योंकि इसमें ये बस हमारा पर्सपेक्टिव, मैं उधर क्या देख रहा हूँ ये सब तो हमारा पर्सपेक्टिव ही है ऑब्वियसली. बट हाँ, लाइक आई गेस दैट इज प्रीटी मच इट. नथिंग इवन आई डोंट नो हमने इसमें क्या बात करी, बट कुछ तो करी, मतलब कुछ तो ज्ञान यहाँ पे बांटा गया. चलो कोई नहीं, तो ठीक है. आई गेस इसके साथ वी शुड रैप दिस एपिसोड. थोड़ा एक ओपन एंडेड फिल्म की तरह रैप अप हो रहा है. यस, ओपन एंडेड फिल्म फेस्टिवल के में जाने वाली फिल्म. हाँ, मतलब इट्स ऑन द ऑडियंस टू टेक इट, तुम्हें जैसे इसको समझना है.